Hey, hi everyone. Welcome back to the channel. My name is Saurabh Patel. I am working as an information system officer in IOCL. So every year 9 lakh plus students are registered in GATE. But guess what? Actually 10 to 15% students actually score over 40 marks. So why do 90% students fail? It is not because they are not smart. It is because they makes these avoidable mistakes. So in this video, we will talk about the 7 biggest reason why GATE aspirants fail and how you can avoid them in GATE 2026. So let's get started. One by one, we will discuss about 7 biggest reason. Okay. अच्छा, ठीक है। So point number 1 is no clear strategy. जब वो प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, जैसे अभी अगर मान लीजिए गेट के लिए आपके पास जितना समय है, आपके पास आप गेट का प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपके पास क्लियर स्ट्रेटजी होनी चाहिए। सो विदाउट प्रॉपर स्ट्रेटजी वो पहला मिस्टेक करते हैं जो कि वो अच्छे से रैंक अचीव नहीं कर पाते हैं। ठीक है। सो आपके पास एक टाइमलाइन होना चाहिए कि मेरे पास अगर 10 मंथ है या 11 मंथ है तो हमें मंथ वाइज वीकली वाइज हमारा प्लान डिसाइड होना चाहिए। ठीक है। और उस प्लान में किस सब्जेक्ट के बाद कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, मतलब ओवरऑल टाइमलाइन एंड सब्जेक्ट फ्लो both are very much important because this gate is not like the semester exam. Okay, so please note down कि no clear strategy will not able to qualify the gate with a decent rank and good marks. So please make a clear strategy कि how you do your preparation with a timeline and what is the flow of the subject you are going to study in upcoming days, upcoming week and upcoming month and upcoming this year. Okay. And the second point is ignoring PYQ. अब उन्हें पता भी नहीं चलता, जो लोग आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन, आप लोग को पता ही नहीं चलता कि कब आप PYQ को इग्नोर कर रहे हैं। तो ये मिस्टेक्स नहीं करना है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जैसे सब्जेक्ट्स कंप्लीट होते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट एंड के बाद रिवाइज करके फिर से सब्जेक्ट दूसरा स्टार्ट करते हैं और फिर उसके बाद रिवाइज करते हैं, फिर दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं। ये चलता जाता है प्रोसेस, बट एक्चुअली दे फॉरगेट टू सॉल्व द PYQ, क्योंकि आपके गेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और क्वेश्चन को करने के लिए प्रैक्टिस चाहिए, और प्रैक्टिस कहां से करेंगे आप? PYQ से। ठीक है। तो PYQ जब आप सॉल्व करेंगे एक सब्जेक्ट के पूरे होने के बाद, तब एक्चुअली आपको पता चलेगा कि गेट किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है उस सब्जेक्ट से। बेसिकली यू आर एबल टू फाइंड आउट द पैटर्न्स ऑफ गेट। ठीक है। So what is the question which is frequently asked and most important topics in that subject you will able to figure out. ठीक है। So for that reason the PYQ is most important. So that's why in the previous video and all video I will talk about that कि previous year question is a gold mines for you. So please don't ignore the PYQ. Prepare very well and very seriously. So our third point is passive studying. What means of passive studying? It is like while you watching the lectures, online lectures are recorded lectures, then please make active notes. ठीक है। at the same time you make the notes and please do the problem solving also. तो फिर इसके लिए मैं अपने टाइम पे क्या करता था कि I use generally a 60-40 rules. 60-40 rules is what कि 40% I learning the concepts and 60% is problem solving. So same time always the learning is a 40% always use the concept learning and 60% is of problem solving. This approach which helps for the studying purpose. ठीक है। So please do passive studying like that. ठीक है। Okay. So fourth point is not revising regularly. So please whenever you learn the concepts and you study any subjects or anything, so please revise regularly. ठीक है। और रिवीजन के लिए आपको मैं एक प्लान बता देता हूं, जैसे कि आप डेली बेसिस पे रिवीजन करते हैं। ठीक है। उसके बाद आप 3 डेज में रिवीजन कीजिए, उसके बाद आप वीकली वाइज रिवीजन कीजिए, फिर मंथली वाइज। सो यू सेपरेट द सब्जेक्ट्स और द टॉपिक्स लाइक दैट। डेली रिवीजन, 3 डेज रिवीजन एंड देन वीकली रिवीजन एंड देन मंथली रिवीजन। सो इसके बेसिस पे अगर आप पढ़ते जाएंगे, कवर करते जाएंगे, तो आपका रिवीजन बहुत परफेक्ट होगा। So please do the revision regularly. And the fifth point is कि test series. Please give the test series when it's required. जैसे कि आप जब सब्जेक्ट्स पढ़ लेंगे, उसके बाद आपके कुछ सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे, तो 3-4 महीने बाद आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट स्टार्ट करेंगे टॉपिक के बाद।
तो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आप देंगे। कुछ लोग क्या होते हैं कि फियर ऑफ टेस्ट सीरीज होता है, टेस्ट सीरीज से उनको डर लगता है। तो टेस्ट सीरीज में किस लिए डर लगता है कि लो स्कोर आ जाएगा, ठीक है। सो प्लीज ये टेस्ट सीरीज आपके लिए मैटर नहीं करता है, आपको चेक करने के लिए नहीं है। एक्चुअली इट्स यूज्ड फॉर योर इंप्रूवमेंट, आपके ग्रोथ के लिए टेस्ट सीरीज को देना है, ठीक है। सो टेस्ट सीरीज को आप लो स्कोर आ जाएगा इस फियर से या किसी फियर से आप नहीं देखे उसको डिले कर रहे हैं, तो दैट इज वेरी बैड। क्योंकि टेस्ट सीरीज ही आपके मिस्टेक्स को ऐसा फिल्टर्ड आउट करेगा, ठीक है। आपके जितने सिली मिस्टेक्स हैं वो टेस्ट सीरीज के द्वारा ही कम होते जाएंगे, और आप एक्चुअली गेट एग्जाम में कैसे एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए आप प्रिपेयर्ड होते जाएंगे, ठीक है। जैसे आप स्टार्टिंग में टॉपिक वाइज टेस्ट देते हैं, फिर सब्जेक्ट पर टेस्ट देते हैं, फिर उसके बाद जब आप प्रोसेस में आएंगे कि जब आपको फुल लेंथ टेस्ट और मॉक टेस्ट देना होगा, उस टाइम पे एक्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करके आप टेस्ट देंगे। तो टेस्ट सीरीज की भूमिका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज ऑन टाइम गिव टेस्ट सीरीज, डोंट फॉरगेट टू डू दैट, ओके। सो आई विल गिव यू अ स्टेटमेंट दैट कि मॉक और फॉर लर्निंग, इट्स नॉट फॉर प्रूविंग योरसेल्फ, ओके। सो इट्स ऑलवेज कीप इन माइंड कि मॉक टेस्ट आपके लर्निंग के लिए, आपके ग्रोथ के लिए, ना कि आपको प्रूफ करने के लिए। वो मिलेगा आपके गेट एग्जाम में मौका जब आप खुद को प्रूफ करेंगे, ओके। एंड द 6th पॉइंट इज की कॉपिंग अदर्स शेड्यूल। बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि टॉपर्स या इन्फ्लुएंसर की वीडियो देख लेते हैं और उनके सेम शेड्यूल को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। बट आपको ये पता होना चाहिए कि आप अपना शेड्यूल खुद से कस्टमाइज करेंगे, खुद से बनाएंगे, ना कि दूसरों को फॉलो करना। क्योंकि कोई किस तरीके से स्टडी कर रहा है, कैसे वो प्लान बना रहा है, कैसे वो टाइमिंग डिसाइड कर रहा है, वो टोटली डिफरेंट होगा। आपके कॉलेज का क्या लोड है, आपके वर्क का क्या लोड है, ठीक है, और आपकी स्ट्रेंथनेस क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, उसके हिसाब से आप अपने शेड्यूल को कस्टमाइज करेंगे। सो प्लीज डोंट फॉलो द अदर्स शेड्यूल, ओके, प्लीज मेक योर ओन। एंड द 7th पॉइंट इज लास्ट बट नॉट लीस्ट। 7th पॉइंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि इनकंसिस्टेंसी। आपके पढ़ाई के दौरान क्या होता है कि आप जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो आपको लगता है कि यस मुझे गेट क्रैक करना है। आप 10 दिन, 12 दिन, 1 महीने, 2 महीने तक कंटिन्यूअस रहते हैं, आप कंसिस्टेंट रहते हैं, लेकिन उसके बाद आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक होने लगती है। तो इसके लिए आपको लॉन्ग गैप नहीं देना है। आप स्टडी कर रहे हैं तो आप रोज कंसिस्टेंट रहिए। किसी दिन आप 10 घंटे पढ़ते हैं, किसी दिन आप 4 घंटे पढ़ते हैं, बट आपको पढ़ना है, आपको रोज कंसिस्टेंट रहना है। आपको दिन बीतने के बाद एनालाइज करना है कि आपने कितना टास्क कंप्लीट किया है, ठीक है। क्योंकि कंसिस्टेंसी इज द की, कंसिस्टेंसी इज द की, ओके। उसके साथ साथ आपके बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं, पेशेंस एंड एवरीथिंग, बट आपको कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। आपके पास 1 साल है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, आपके फ्यूचर्स को बदलने के लिए, ठीक है। सो फोकस ऑन दैट। योर फोकस ऑन प्रिपरेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आप फोकस्ड होकर लर्न कीजिए, कंसिस्टेंट रहिए, डेफिनेटली यू विल गेट सक्सीड। सो प्लीज दिस 7 पॉइंट्स विच इज आई विल टेल यू कि इफ यू आर गोइंग टू दिस, सो ये जो 7 पॉइंट्स है ये आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन 7 पॉइंट को आप अगर ध्यान में रखेंगे और ये मिस्टेक्स को आप अवॉइड नहीं करेंगे, ठीक है, ये मिस्टेक्स आप अवॉइड नहीं करेंगे तो यू विल डेफिनेटली गेट सक्सीड एंड यू विल डेफिनेटली गेट अ डिसेंट रैंक इन गेट। तो आपके 2026 के प्रिपरेशन के दौरान ये मेन बिगेस्ट रीजन थे 7 जो आप मिस्टेक्स कर सकते थे। प्लीज नोट डाउन एंड डोंट डू दिस मिस्टेक्स। इन सारे 7 पॉइंट्स के अलावा अगर मैं आपको बोनस टिप्स देना चाहूं तो देखिए, पहली बात आप अपने को क्लियर रखिए, ठीक है, कि आप अपना माइंडसेट क्लियर रखिए, आप अपना मोटिवेशन क्लियर रखिए, ठीक है। आप ये नहीं है कि दूसरा कोई प्रिपरेशन करके 10 सब्जेक्ट खत्म कर चुका है, 12 सब्जेक्ट, तो आप पहले सब्जेक्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, तो प्लीज डोंट कंपेयर विद दैट, ओके। सो आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करें, अपना टाइमलाइन सेट कीजिए, अपना सब्जेक्ट ऑफ फ्लो स्टार्ट कीजिए और अपना कब आप तक एंड कर रहे हैं, और बाहरी डिस्ट्रैक्शन से आप दूर रहिए, ठीक है। क्योंकि आप जिस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं वो आउटसाइड डिस्ट्रैक्शन बहुत सारे होंगे, दुनिया भर की चीजें होती हैं, तो प्लीज बाहर के डिस्ट्रैक्शन से आप दूर रहिए। 1 साल फोकस्ड होकर आप स्टडी करिए, ठीक है, गेट के लिए अच्छे से। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास कमेंट भी आया कि मैं इस तरीके से प्रिपरेशन कर सकता हूँ, मेरे पास ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, तो वो एक ऑप्शन था उनके, दूसरे ऑप्शन गेट के लिए भी प्रिपेयर करते रहते हैं।
देखिए, अगर आपके पास, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आपके पास अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप प्योरली एक चीज पढ़े रहिए। जैसे कि आप गेट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप अच्छे से गेट की तैयारी कीजिए और गेट पे ही स्टक रहिए, ठीक है। हालांकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आप पढ़ रहे हैं, आप टाइम निकाल ले रहे हैं गेट के लिए जॉब के साथ, दैट इज गुड। उसके लिए आपको स्टडी प्लान शेयर किया है मैंने, ठीक है। लेकिन आप जब गेट पे पैर रख रहे हैं तो उसके साथ साथ बहुत सारी चीजों पे ना रखिए, क्योंकि एक तरफ आप अगर कंसिस्टेंट फोकस होकर करेंगे तो यू विल अचीव योर 100% बाय पुटिंग योर 100% एफर्ट, ओके। सो इस चीज को आप वेरी मच क्लियर रहिए। जो लोग बोलते हैं कि, जैसे बोल रहे हैं काफी लोग कि ये चीज कर रहे हैं बट इनका इंटरेस्ट गेट में है, वो गेट दे रहे हैं, तो अगर आप गेट दे रहे हैं तो आप अपने माइंड में क्लियर रखिए कि मैं अपना 100% दे रहा हूं, सो तब आपको जाके 100% आउटपुट मिलेगा, ठीक है। सो अपने ऑप्शंस पे क्लियर रखिए कि आपको करना क्या है। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये अभी स्टार्टिंग है प्रिपरेशन का, ओके। सो अभी के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में कर सकते हैं, या आपको किसी नए टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू डू कमेंट्स, and we will meet soon in the next video with the new topic, okay. Till then, bye bye.